جو لوگوں نے اب بولنا شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جلدی وہ آ جائے گا ٹائم جب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. مسلسل ہے اس کا تسلسل ہے مظالم کا وہ اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آئی جی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا آئی جی کا تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اتنا گھٹیا شخص جو اس اتنے عام عہدے پر بیٹھا ہوا ہے جس کو جی چاہا پکڑ لیا اور جس پہ جتنے دل چاہے اتنے مقدمات بنا لیے. یہ ہمارے سامنے ہے آپ نا نے عالیہ. خود ہی پہلے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جیسے پرویز الہی صاحب ہے، ان کی 9 مئی کے حوالے سے ہر کوئی 4 شہروں میں مقدمات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹو ڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان یونس پاٹ. ہم سیاست سے جڑی ہوئی خبروں پر تجزیہ پیش کرتے ہیں، جبکہ شہر میں بڑے واقعات، ملک میں بڑے واقعات، پنجاب میں بڑے واقعات، دیگر صوبوں میں جو اہم خبریں ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. عدلیہ میں پیش آنے والے واقعات پر جو ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس پر بات چیت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ہم ایک تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب ترامیم کے حوالے سے آج کل سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، اس پہ آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. یوٹیوبر عمران ریاض جو سینئر صحافی ہیں، پہلے یہ ریگولر چینل میں بھی کام کرتے رہے ہیں، ان کا کیس جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اس پر بھی فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد سنا دیا گیا ہے. تو دیگر جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی جیل میں اسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کوئی تصاویر جاری کی ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا ہوا ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی. دیگر جو ہمارے بڑے واقعات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. مثلاً عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی ضمانتیں ہو گئی تھی مختلف کیسز میں، اور عدالت نے حکم دیا تھا اگر ان پر کوئی مزید کیس نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے. ایک دن پہلے صنم جاوید کو رہا کیا گیا اور گجرانوالے کی پولیس اسے لے کے وہاں پہنچ گئی. آج جناب عالیہ حمزہ کی رہائی روپ کا لیٹ ہونے کی وجہ سے کل نہیں ہو سکی تھی، آج اس کو رہا کیا گیا اور حسب معمول جس طرح ایک عرصے سے ان کی گرفتاریاں جاری ہیں اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے بھی گجرانوالہ پولیس لے آئی ہے. ایک ہی خاتون ایک ہی وقت میں ایک ہی ملزم ایک ہی ٹائم پہ مختلف شہروں میں حملوں میں ملوث قرار دیے گئے ہیں. اب ان کی گرفتاری کو بھی 1 سال کا وقت تقریباً گزر چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں کیسا یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیسے یہ جناب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے پولیس افسران ہیں غیر جانبدار ہیں، کسی صورت بھی نہیں کہا جا سکتا. پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی نوکری کو طول دینے کے لیے، پوری کوشش کر رہے ہیں چاپلوسی کی، پوری کوشش کر رہے ہیں چمچہ گیری کی، تاکہ ان کی نوکری برقرار رہے اور اس کی خاطر انہیں جو بھی غیر قانونی اقدامات کرنے پڑیں وہ کر رہے ہیں. دیگر خبروں میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہم آپ کے زیر بحث لائیں گے، اسپیکر جو سابق قومی اسمبلی اسد کیسر ہیں، انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے، پشاور ہائی کورٹ سے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تمام کیسز کی انہیں جو ہے تفصیل فراہم کی جائے. اس پہ بھی بات چیت کریں گے. اس پہ جو جیل سے تصاویر جاری کی گئی ہیں، جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیٹیکل اطلاعات کی جو وزیر ہیں عظمیٰ بخاری، اس نے بھی بڑا زہر اگلا ہے کہ جناب جیل کم سسرال زیادہ. اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے جو کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے معاملہ چل رہے تھے اور انہوں نے اجازت دے رکھی تھی، آج اس پہ بھی بات چیت دوبارہ ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ آج کل چائنا کے دورے پر ہے، وہاں کیا چل رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. پاکستان اسٹاک چینج میں مندی کا رجحان رہا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے دوران کوئی بڑی خبر آ گئی تو وہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب جہید اقبال گریز صاحب موجود ہیں جو خبروں پر تجزیہ پیش کریں گے، جبکہ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم جو سینئر قانوندان ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کریں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے. گریز صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے. جو یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے قانون سازی کی اور اس میں بڑا کوئی تبدیل کر دیا، اور انہوں نے موجودہ حالات کے پیش نظر دیکھتے ہوئے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہیں، وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے اس کے لیے کیا، اور انہوں نے سوچا کہ جن ترامیم کرنے سے ان کی ذاتی جو ہے وہ معاملات میں فیور انہیں ملتی ہے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے،
اس کے لیے اس کو جناب انہوں نے ترمیم کر ڈالی۔ تو ترمیم کیس میں جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان، وہ جیل سے سماعت کا حصہ بنے اور اس کی سماعت ہوئی، سماعت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھیں گے۔ قریش صاحب، اس پر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی کہ مختلف ججز کے سامنے سے ڈسکس ہوئی ہیں۔ یہ ایک بڑا بینچ تھا، لارجر بینچ، جس میں یہ کیس سماعت ہوا۔ عمران خان ڈیلا جیل سے بذریعہ ویڈیو لنک اس میں پیش ہوئے۔ 5 رکنی لارجر بینچ اس میں زیر سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فروخ ایچ نائک بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی دلائل دیے اور دلائل مکمل ہونے کے بعد ہی اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بٹ صاحب، ایک تو یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بنی جی، اور اس میں انہوں نے اپنے 16 ماہ میں کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی جی۔ قانون سازی کرنا تو بہت بڑا کام ہے، لیکن انہوں نے قانون سازی اپنے مفاد کے لیے کی۔ انہوں نے قانون سازی کی ان قوانین کو چینج کرنے کی کوشش کی جس کے تحت ان کے کیسز جو تھے بہت زیادہ تھے اور وہ ختم ہو سکتے تھے اور اس کا بینیفٹ وہ لے سکتے تھے، وہ قانون سازی کی۔ اور اس میں یہ بھی ایک نیب میں بھی بہت ساری جو ہے انہوں نے کی تبدیلیاں، اور اس میں بھی وہ بھی ایک قسم کی قانون سازی کی۔ اور یہ دیکھیں نا، اب جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس وقت شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم لگنے والی تھی، لیکن اس قانون سازی کے بعد وہ نہ صرف وہاں سے بری ہو گئے بلکہ وہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اسی لیے یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے۔ اگر ہم ملک چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام کام قانون اور آئین کے مطابق کرنے چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو ہم لوگ کرپشن کریں، ہم لوگ لوٹیں اس ملک کو، ان بچوں کے منہ سے نوالے چھینیں، اور اس کے بعد پھر ہم جب ڈیل کر کے دوبارہ آئیں اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح کی قانون سازی کریں کہ وہ جو پچھلا پیسہ ہم نے جو لوٹا ہے اس کو جو ہے اس قانون کے تحت پوچھ گچھ نہ کی جائے اور ہم نئے سرے سے وزیر اعظم بھی بن جائیں اور وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں۔ تو یہ تو بدقسمتی ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے۔ اور یہ بڑا اہم تھا کہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں لانا، تاکہ یہ جو غلط قسم کی قانون سازی کی گئی ہے اس کے تمام نکات کو دیکھا جائے اور ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور ان میں سے جو اچھے نکات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو غلط ہیں جس سے ہم سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بناتے ہیں یا سیاسی پارٹیوں سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے قوانین جو ہے وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے۔ نیب اس لیے ہونا چاہیے احتساب کے لیے، لیکن احتساب ہونا چاہیے میرٹ کی بنیاد پر، اور اگر میرٹ کی بنیاد پر احتساب نہیں ہوگا تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت کی حکومت نے جو کچھ کیا، اس وقت کی حکومت نے یہ کیا کہ جو چیزیں انہیں سوٹ کر رہی تھیں، انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ میاں شہباز شریف کو ایسے وقت میں وزیر اعظم بنا دیا گیا جب ان پر جو ہے فرض جرم عائد ہو رہی تھی اور انہیں سزا ہونے والی تھی۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم احتساب
का जो सिलसिला है ये शुरू करके सबके लिए कोई बराबरी का सिलसिला चाहते हैं कि जी होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने जितने भी अपने दौरे हुकूमत में जिसमें 14 जमातें शामिल थी, अपने मफादात की खातर वो एक एक दिन में 70-70 50-50 बिल लाए गए और उस पर अजलत पे फैसले सुनाए गए, अदलत में कानून साजी की गई। उन्हीं केसों में से ये नैब तरमीम केस का भी एक केस है। तो गुरैश साहब, हमें हसनात गिलानी साहब सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से ताकि वो ब्रीफली बता सकेंगे कि इसके आफ्टर ऑल क्या नुकसानात हैं और पस मंज़र में क्या चीज़ें हैं। जी गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गिलानी साहब, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है। आज नैब तरमीम के हवाले से जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था सॉरी जी जी जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था और उस पर समाअत भी हुई, दलाइल भी दिए गए, फैसला अभी आना बाकी है, महफूज कर लिया गया है। तो हमारे नाजरीन जो हैं वो सारी चीज़ों को समझ नहीं रहे होते, उन्हें पता नहीं होता, सिर्फ इतना पता होता है गो कि हमारी अब पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार हो चुकी है, आफ्टर ऑल हर चीज़ को समझ रही होती है कि कहाँ क्या दो नंबरी हो रही है, किस तरीके से किसको कैसे जनाब नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि नैब तरमीम जो केस है, ये तरमीम होने से पहले क्या था और तरमीम करने का मकसद जो बानी PTI है इसको सजाएं दिलवाना या इसके लिए मसाइल पैदा करना था, या ओवरऑल तरमीम करके कोई ऐसा हल निकाला गया है कि जिससे पाकिस्तान के आने वाले जो हुकूमती फैसले हैं उसको यानी कि हम लोगों के लिए, अवाम के लिए ये कह सकें कि बड़े फेवरेबल थे और ये तरमीम होना ज़रूरी थी। जनाब जी देखिए, जो नैब का कानून था, जिस तरह आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का क्वेश्चन किया है, तो उसमें ये है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये नैब का जो कानून था ये तो बिल्कुल काला कानून था। ये कानून तो होना ही नहीं चाहिए था। और ये हर जो पॉलिटिकल लीडर है, ये बानी PTI की तो बात ही नहीं हो रही, हर पॉलिटिकल लीडर ने कहा जब जब वो इसके दायरे में आया और जब जब वो इसके शिकंजे में आया और उसके ऊपर ये केसेस आए, तो उसने कहा कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये काला कानून है। और ये एक टर्म बोली गई कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है। अब जो आपने ये बात की कि इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है, एक्चुअली ये बिल्कुल ही जो हमारे CRPC जो क्रिमिनल कोड राइज है और जिसमें लिखा हुआ है कि जो बेल भी हो सकती है, रिमांड का भी इशू है और अपील और सजा का भी, इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दी नेचुरल जस्टिस के। यानी जो रिलीफ दिया जाता है, जो किसी को फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है, जो किसी मुल्ज़म को जो सहूलियात दी जाती हैं, जो कि बेसिक जब से ये कानून बना है और जब से ये नाफिज़ुल अमल है उस वक़्त से वो कोई सहूलत इसमें मौजूद नहीं है। ये बिलाशुबा इसीलिए कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल हुआ भी है और ये प्रूव भी हुआ है कि ये बिल्कुल इसी काम के लिए। आप जिस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें 90 डे का रिमांड है, यानी आप 90 दिन रिमांड ले सकते हैं। इसमें बेल की कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं है, आपकी बेल हो ही नहीं सकती इसमें। और इसमें जो अपील है, इसमें प्री रेस्ट बेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR हो जाती है तो उसमें दूसरा जो कानून है उसमें यह है कि आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। इसमें बेगुनाही भी साबित नहीं आप कर सकते। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो तरमीम की गई थी, आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में ना देखें कि ये किसको फायदा या किसको नुकसान पहुंचा या किन्होंने फायदा उठाया और किन्होंने नुकसान उठाया। ये जो तरमीम थी ये बिल्कुल मैं इसकी फेवर में और मेरे बयान के मुताबिक या मेरी राय के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक जो तरमीम है वो की गई है, बल्कि ये और ज्यादा तरमीम होनी चाहिए, इसको वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। ये जो है नहीं करना चाहिए। इस जो हमारा जो क्रिमिनल कोड चल रहा है उसके होते हुए इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे आइन में और हमारे कंट्री में। दूसरी बात ये है कि इसका फायदा बानी PTI को
اب اس کا نقصان ہی ہونا ہے اگر یہ ترامیم جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تو یہ تو پولیٹیکل سینیریو کی کویسچن ہیں یا پولیٹیکل سینیریو میں یہ چیزیں ہیں، ادروائز یہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح گل صاحب آپ نے کہا کہ آفٹر آل اگر یہ ختم ہوتی ہیں تو بانی پی ٹی اے کو نقصان ہی ہوگا، کس صورت میں ہوگا؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی زد میں بانی پی ٹی اے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہی نا، دیکھیں وہ ریمانڈ جو ہے وہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا، وہ بیل کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو ریفرنس جو ہیں وہ کسی وقت کسی بھی جو جس طرح سے ان کے یہ سارے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جا سکتے ہیں، اب وہ نیب میں نہیں جا سکتے تھے یہ جتنے بھی کیسز ہیں، تو وہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو ہیں اس کا ان کو نقصان ہوگا۔ نہیں، ایک تو یعنی کہ ترمیم یہ شک بھی شامل ہے کہ دیگر کیسز جو ہے وہ نیب میں جا سکتے ہیں۔ جی یہ فوجداری کیسز بھی وہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں فوجداری نہیں جا سکتے۔ دیکھیں فوجداری کیس اگر فوجداری کے تحت ہوا ہے، یہ جتنی بھی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فنانشیل انہوں نے جو ان پہ ایلیگیشن ہیں کہ انہوں نے یہ جو املگیشن کی ہوئی ہے جو فنانشیل کرپشن کی ہوئی ہے وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جو کوئی توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے یا کوئی یہ کسی 145 کی خلاف ورزی ہے یا کوئی سپیچ ہے یا کوئی اس کے اگینسٹ ہے، اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، تو وہ پی پی سی اس پہ نافذ عمل ہوگی اور وہ جو ہے وہ عام طریقے عام کورٹ کو ڈیل کریں گے۔ اچھا گرن صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ کے خیال میں فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن لائر صاحبان کو کیونکہ روزمرہ کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے، سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیس کس طرف جا رہا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے جو اگر ہم اپنے ناظرین کو اس کا کوئی اچھی خبر دے دیں ان کو ہم کہ یہ اس میں فیصلے کی جو ہے وہ امکان ہے یہ آ سکتا ہے، آپ کے خیال میں ترمیم ختم ہو جائیں گی؟ ویسے تو گرایا صاحب ہم جب فیصلہ آتا ہے نا تو اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ جو آج سارا دن اور جو پچھلی پروسیڈنگ ہوتی رہی اور جو کویسچن آتے رہے ججز صاحبان کی طرف سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپیل ہے یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی پانی کی۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ ججز کے ریمارکس کے حوالے سے بھی کوئی بتائیے گا کہ کون سے جج صاحب جو ہے وہ اس کی فیور میں تھے، کون سے جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے؟ سنا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے آج کل ان کی قاضی صاحب کے ساتھ بڑی جو ہے وہ یعنی کہ دوران سماعت کافی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر رہے ہوتے اکثر چیزوں پہ، تو اس میں کیا صورتحال رہی؟ جی اسی طرح سے ہے، دیکھیں نام لیے بغیر میں کہوں گا کیونکہ پھر وہی چیز آ جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی ہے، تو 2-3 جج صاحبان ہیں جو بالکل جو ہے وہ ایکچولی نا ڈفرینس کریٹ ہو گیا ہوا ہے اور وہ اوپن کورٹ میں نظر بھی آتا ہے، یعنی ویوز جو ہیں جج صاحبان کے وہ اس میں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو جو ہے یہ آن ایئر ڈسکس کروں، تو اس میں جی جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ ڈیفرنس ہے، یعنی یہ جو فیصلہ آئے گا یہ بہت کم مارجن سے ہوگا، مطلب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ 6-2 کا ہو گیا یا 7-1 کا ہو گیا، یہ کوئی 5-3 کا یا 4 میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں اس میں آئیں گی۔ اچھا گلن صاحب، جیل میں بانی پی ٹی آئی کی شکایت تھی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو گورنمنٹ نے اس پہ کچھ تصاویر جاری کی ہیں کہ یہ دیکھیں، انہوں نے ملاقات کی تصویریں بھی جاری کی ہیں، یہ اب نہ تو بانی پی ٹی آئی جو انہوں نے تصاویر پیش کی ہیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور موجودہ حالات میں نہ ہی کوئی تردید کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے طور پہ تو کافی شواہد پیش کر رہے ہیں، لیکن پرویز لائی نے کہا تھا کہ جب یہ اندر کی صورتحال جج صاحبان کو بتاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی لا کے رکھ دیتے ہیں جو بعد میں اٹھا لی جاتی ہیں، تو دیکھیں اب پنجاب میں حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کی ہے، یہ تو پی ٹی آئی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ پنجاب میں حکومت ان کی ہے اور جو پاکستان پنجاب کی حکومت ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو ساری صورتحال عوام بھی بخوبی جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کتنا قانون کے مطابق
जो है वो सलूक रवा रखा जा रहा है, या पीटीआई के दीगर लोगों के साथ कितना कानून के मुताबिक जो है सलूक रवा रखा जा रहा है। मसलन आप देखें कि आलिया हमजा है, सनम जावेद है, वो एक ही वक्त में जनाब लाहौर में हमले कर रही हैं, एक ही वक्त में सरगोदे में हमले कर रही हैं। अगर उनकी खुदा करके बेल हो ही गई है तो ये आप देखेंगे कल उन्होंने सनम जावेद को वहाँ से उठा लिया, आज आलिया हमजा को उठा लिया और उनको गुजरांवाला पुलिस ले आई है। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि वो हम जिसको कहते हैं कि चमचागिरी, मकसद एक ही है चापलूसी, और मकसद एक ही है दुम छल्ला बन के कि किसी तरह हम पुलिस अफसरान चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के जनाब खुद को ये साबित कर सके जी हम जनाब के चमचागिर हैं, जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। यानी कि ये तो कोई कानून नहीं है ना कि अगर कोई बंदा बेगुनाह है तो उसके लिए फिर आपको बेगुनाह ही कहना चाहिए। ये तो जी बिल्कुल इसी तरह से है के लिए आप वो भी जनाब सारी हदें क्रॉस कर जाएं जिसकी आपको इजाज़त ही नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम फिर ये लोग कहते हैं कि जी जनाब जो न्यूज़ एंकर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। हालात के मुताबिक हमें बातें करना पड़ती हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। देखें जो हर जी शऊर, हर अहले इल्म और हर अक्ल व दानिश और कानून दान जो है वो तो यही जो आइन में लिखा हुआ है उसी की बात करेगा। और ये जो जितनी भी वायलेशन हो रही हैं इस पे बोलना भी जनाब का राइट है और हक है, और अवाम को दिखाना भी और बताना भी और गाइड करना भी, ये सारा कुछ तो राइट है। आप वो देखें, अब आपकी ना बारी आ जाए गुराया साहब, आप जरा थोड़ा सा वो हाथ है जो वो हौला रखें। बात ठीक है आपकी। वो अब इमरान रियाज का केस चल रहा था, साथ उसके शहाबुद्दीन भी हैं, उन्होंने केस किया हुआ था कि हम बाहर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हमें इजाज़त दी जाए। हम जब भी जाते हैं मेरे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। तो वो बड़े जनाब समाअत के बाद बड़े काफ़ी दिनों के बाद आज उस पर फैसला महफूज हुआ, और आखिर में क्या हुआ कि जनाब वही कह दिया गया इमरान रियाज को कि जी आप वजारत दाखिला से रब्ता करें। वजारत दाखिला को पहले हिदायत की गई नहीं जी इनको इजाज़त मिलनी चाहिए, उन्होंने उनके कहने पे उनका नाम जो है वो LC से निकाल दिया। तो उधर से निकालने के बाद उन्होंने कहा जी एंटी करप्शन की हिदायत पे हमने फिर किसी और दूसरी सिस्टम में डाल दिया है। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वो तो पहले ही पता है अदालतों को कि वजारत दाखिला तो उन्हें इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर ये कह देना कि 2-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद कि नहीं जी अब आप नहीं जा सकते, आप वजारत दाखिला से रजू करें। तो ये सूरत इंतहाई अफसोसनाक होती है। जी आप कुछ बात करना चाह रहे थे इस पर? इसमें थोड़ा सा जो आपकी बात है इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि असल में हुकूमत यहाँ पर 1947 के बाद चेंज नहीं हुई जनाब। हम आजाद तो हुए हैं लेकिन हम आजाद कोई नहीं हुए जनाब। तो ये वही बिल्ली चूहे का वही खेल जो है वो खेला जा रहा है अवाम के साथ। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है यही जजेस को भी बात इसी तरह मिसगाइड करती है, और जो भी नुमाइंदे आते हैं मुंतखब होके उनको भी इसी तरह से मिसगाइड करती है। और बस गवर्नमेंट जो है, जो हुकूमत है, ये इसी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रहती है। अच्छा गिलानी साहब, आपने देखा होगा कि वो यानी कि एक लंबे चौड़े तबके की आवाज़ थी, कोई मखसूस तबका भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं हम यही कह सकते हैं कि चलो ज़्यादा लोगों का यही था कि बानी पीटीआई 2 दिन भी जेल नहीं निकाल सकेगा जनाब, वो तो अडिक्ट है और वहाँ तो पलग पता जाएगा जनाब। ते राणा सनाउल्लाह जैसे लोग सारे जितने भी थे के लिए जनाब। खैर मुख्तर ये कि अब लोगों को पता चल गया है कि बानी पीटीआई और जनाब जो मुस्लिम लीग नून के कायद और जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जब वो जेलों में रहते थे उनके क्या मुतालबे होते थे, और ये जेल में रह रहा है इसका क्या मुतालबा रहा है। तो लोगों को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर उसने मुतालबा किया तो उसने कहा यार अगर 10 किलो का डंबल सी तो है मैनू 5 किलो नाल इजाफे का 15 किलो का दे दो ना। तो उन्हें किसी कहा कि मैं शौकत खानम लै जाओ, मैंने दिल की बड़ी तकलीफ हो गई है तो मैं डिगन लगा जे, तो ना ही उन्हें कहा जनाब मेरा इलाज तो लंदन तो रहा होना ही नहीं है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਆਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर बयानिया तब्दील किया जा सकता था या जा सकता होता तो फिर अब तक तब्दील हो गया होता। बात पता क्या है गुराया साहब, जब वो कहते हैं ना जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। यूनुस बाट गिलानी साहब मेरा नाम का डर जो है गिलानी साहब मेरा नाम यूनुस बाट है गिलानी साहब। सॉरी जनाब साहब वो जी गुराया तो साहब वो मेरे ये साथ है स्टूडियो में मौजूद हैं। जी जी
जनाब, ये है कि सर, बात ये है कि अब वो डर जो है ना वो खत्म हो गया डर, बल्कि मैं तो लीडरशिप पे तो खत्म होना ही होना था, क्योंकि उनको आगे चले कुछ चार्म नजर आ रहा होता है, लेकिन ये तो अब अवाम का डर भी खत्म हो गया। तो अब अवाम भी जो है ये सारा जुल्म सितम जो है ये सहने के सह के अब वो जो सिचुएशन है और वो जो कंट्रोल है या वो जो बात थी वो खत्म हो गई हुई है। अब मुझे लगता है कि ये जल्दी ये सारा निज़ाम जो है ये खुद ही गिर जाएगा, और उसके बाद जो है असल जो पावर है और असल अवाम की जो ताकत है उसके जरिए हुकूमतें पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे जी, आपकी बात यही अवाम चाहती है, यही हर शहरी चाहता है जो भी इसका मुहिब्बे वतन है। अब देखिए, हम ये नहीं कहते कि ये हो तो ये हो जाएगा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब 2 रोज़ पहले गवर्नर साहब बात कर रहे थे कि जो एहतसाब है ये जनाब बिल्कुल इसमें कानून के मुताबिक होना चाहिए, और इसमें कोई यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ बड़ा, यानी कि उन्होंने कहा जी इसको तो अब देखें कि जब वो अपनी पार्टियों की बात करते हैं तो लोगों को पता ही चलता है वो कितना एहतसाब मुनसफाना चाहते हैं क्या उनके। तो अब जो बात आपने की या हम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन का सिस्टम है कोई भी पार्टी जीते ये इस तरह का होना चाहिए कि किसी को जरूरत ना उस पर उंगली उठा सके। ये नहीं होना चाहिए कि आज जिस तरह पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है, नहीं ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो फॉर्म 45 की है ही नहीं। तो हमारे सिस्टम ठीक होने चाहिए, जो कि हमारे कोई भी सिस्टम की कम से कम बहाली नहीं चाहता, कोई भी सिस्टम को ठीक इसलिए करना नहीं चाहता कि जहाँ से मुदाखलत करके अपनी पावर का जनाब ये असर दिया जाता है कि हमारे बगैर कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो इस पे जनाब बिल्कुल इसी तरह से ये तो फिर अब होगा, मुझे नहीं लगता कि अब ये रुक जाएगा, ये हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप देखें आपके ये कब होता है, वो कौन सा टाइम है, कितनी देर है, ये बस अब डिसाइड होना है। ये जो एक वेव चल गई है, ये जो एक तहरीक चल गई है, ये जो डर खत्म हो गया है, जो लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी वो आ जाएगा टाइम जब ये सारी चीजें जो हैं वो हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया ग्रैंड साहब, आपने हमें कानूनी पेचीदगियों के हवाले से ख़ास तौर पर जो नैब तरमीम के अंदर चल रही थी वो बताई, और आपने दीगर जेल के हवाले से बात की, आपने सिस्टम की आगाही के हवाले से बात की, आवाम में जो एक शऊर पैदा हो चुका है उसके हवाले से बात की। नाज़रीन यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा पर यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह आपने सीनियर कानूनदान जनाब हसनात ग्रानी साहब को सुना, अब मैं स्टूडियो में वापस आता हूं और जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब से बात करते हैं। गुरैश साहब, आपने बड़ी डिटेल बातें सुनी, आपने देखा कि जनाब ग्रानी साहब ने इस पे सारी तफसील से बताई। खैर इमरान खान ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उसको तरमीम वापस होने से नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, यकीनन उन्होंने कोई ना कोई इसमें बेहतरी का पहलू ही निकाला होगा। आपका क्या ख्याल है? ये देखें, इमरान खान साहब जो है ना असूलों की सियासत करते हैं, उनकी हर बात जो है असूलों पे मुबनी होती है, और उन्होंने जो तरमीम जो हैं जो जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सियासत में जो है रंजिशें पैदा हो सकती हैं, यानी कि उन्होंने बाकी काफ़ी टॉपिक है, हम इस पे पहले भी आपने बात कर ली है। हम कहते हैं कि उन्होंने जो तरमीम के हवाले से केस दायर कर रखा है, यकीनन कानूनी जो माहरीन है मुशावरत के बाद दायर किया होगा, और उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि इसमें उनकी अपनी जमात के कौन कौन से लोग कोई नुकसान हो या फायदा हो। उन्होंने यकीनन मुल्क के मफाद की खातिर उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा है कि मुल्की मफाद। अच्छा, दूसरा मैं आपकी तरफ आना चाहता था, आपने इस पे बात नहीं की कि इमरान खान ने कहा था कि जी जेल में ना तो मुलाकात की सहूलत फराहम की जाती है, जो आने वाले उसके मुलाकाती हैं उनको तंग किया जाता है। ये तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि मुलाकात की आम इजाज़त नहीं थी, जबकि जब मियाँ नवाज शरीफ वगैरह अंदर थे तो वो अंदर से लिस्ट बनाते थे कि ये लोग भिजवाए जाएँ, और लोग बड़ी बाखुशी और आसानी से मुलाकात कर लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, उनकी शिकायत तो बजा थी, लेकिन इन्होंने अब शिकायत दूर करने की बजाय इन्होंने कहा जी ये कमरे हैं जनाब, ये सहूलतें हैं, ये बेड है, ये तस्वीर, पता नहीं वो सहूलतें अंदर हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें पेश की हैं, बात यह है कि जेल तो जेल ही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कहते हैं कि जी इसको रात को पार्क में छोड़ दिया जाता है और ये आकर के वापस आ जाता है, या जिस तरह का PTI का मुहासबा किया जा रहा है या गिराव किया गया है सिस्टम ने,
कोई बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान को जेल में वो सहूलतें फराहम की गई होंगी जो कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मिलनी चाहिए। आप इससे इत्फाक करते हैं या मेरी बात की तरदीद करते हैं कि नहीं, इमरान खान को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं? नहीं, ये तो मैंने क्या तरदीद करनी है, ये तो मुल्क का बच्चा जानता है कि इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है और किस तरह की सहूलतें उसको मिल रही हैं। और लेकिन वो एक जो है मजबूत रहनुमा है, वो एक शख्सियत है, और वो ऐसी शख्सियत है जो कौम को बना रही है जनाब। हाँ जी, जो हजूम नहीं पैदा कर रही, क्योंकि ये असल लीडर वो होता है जो मुल्क में लोगों के हजूम ना बनाए बल्कि कौम बनाने की कोशिश करे। और इमरान खान ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, और हर बंदा ये समझ रहा है कि उनको वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और वो फैसिलिटीज़ किसी से छुपी ढकी नहीं है। इसलिए उनका जो भी मुतालबा रहा है वो ओपनली सामने आता रहा है। बड़ा उन्होंने आप देखेंगे ना वो किसी से एसी का मुतालबा किया, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना वो एसी का मुतालबा किया है, वो कमरे का साइज क्या है, सहाफियों को मिलने की इजाजत नहीं है, सहाफियों को वुकला को मिलने की इजाजत नहीं है, स्पेशल वुकला को मिलने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके वो जनाब बरादरी के साथी आ गए हैं, जनाब मुनव्वर इकबाल गोंदल साहब, उनसे बात कर रहे हैं पहले। जी गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी गोंदल साहब, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब, नैब तरमीम के हवाले से तो हमने बात कर ली है, तो हम चाह रहे हैं कि एक तो पीटीआई के वो लोग जिनकी ज़मानतें हो रही हैं और उनको दोबारा फिर गिरफ़्तार किया जाता है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि जो सिस्टम में बैठे हुए कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं या जिनकी जनाब कमांडिंग में सारा सिस्टम चल रहा है, मसलन आईजी पुलिस हो गया, तो सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी बड़ी आपकी मैं ये कहना चाह रहा था कि सनम जवेद और आलिया हमजा को सरगोदा से रिहाई मिल गई, जमानतें हो गई, गुजरांवाला पुलिस दोबारा ले आई है। ये कौन सा निज़ाम है कि जनाब एक ही वक्त में आप समझ कह रहे हैं कि जी गुजरांवाला भी हमले हो गए, सरगोदे भी हो गए, और जनाब जिना हाउस में भी हो गए, और शादमान थाने में भी हो गए, लिबर्टी में भी हो गए। बच्चे को समझ आती है कि एक मिनट में ये क्या वाक़या है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये जो अपना बैठे हैं अफसरान बाला आईजी साहब हैं या दीगर उनके मतहत जो फोर्स है, ये चमचागिरी की सूरत में ये सारे कुछ अपनी हमदर्दियाँ जतला रही है? क्या इन्हें मौत याद नहीं है कि कल को हमने भी मरना है, और हम जनाब हुकूमत के कहने पे किन किन बेगुनाह लोगों को जनाब ज़बरदस्ती अंदर रख के मजलूम जो उनके ख़ानदान हैं उनकी जनाब बद्दुआएं ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, आप सही कह रहे हैं कि जब से ये पीडीएम वाले आए हैं उसके बाद निगरान गवर्नमेंट, और निगरान गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन, और ये 9 मई का ड्रामा, और 9 मई के ऊपर बहुत बात हुई, लेकिन एक ही बात करते हैं कि जी 9 मई को कंडेम करें। और पहले सब लोगों ने देखा कि जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया था वो जो बंदे आते थे कि 9 मई को कंडेम करते थे तो उनको ये उसी वक्त रिहा कर देते थे, और जो जिन्होंने वो उनकी नहीं मानी, वो जो अफसराने बाला हैं या उसके पीछे जो करता धरता है, जो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उनकी अगर मंशा के मुताबिक कोई बात नहीं करता तो ज़ाहिर है उसको एक नहीं दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और उस लगातार उसको जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में, उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में देखें कि ये सारे का सारा एक ड्रामा जो है वो पीटीआई के कारकुनान के साथ और पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं या लीडरान हैं उनके साथ ये तकरीबन 2 साल से ये एक मुसलसल है, उसका तसलसल है मजालम का, वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो आप देखें कि ये जो आईजी का जहाँ तक तल्लक है, इस आईजी का तो नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि इतना घटिया शख्स जो इस इतने आम ओहदे पर बैठा हुआ है, और जिस तरह वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो जिस तरह के हरबे इख्तियार करता है, जिस तरह के मजालम करता है, और जिस तरह की वो अफसरशाही जो है वो उसके ऊपर जो वो बास है उसकी जो बगैर वो
वो जो एसपी का वो साइन होता है या डीआईजी का या आई का होता है, उसके बगैर एक सिपाही का जो है वो बगैर ऊपर निशान के वो सीएम जो है इसमें कोई शक नहीं कि गोंदल साहब आपकी बात ठीक है कि जितनी भी लांग की जाए सिस्टम पे, पाकिस्तान भी देख रही है आप लेकिन अच्छा, मैं नए टॉपिक की तरफ आना चाह रहा था। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं कि इन्होंने अपनी नौकरी को सिर्फ तवालत देने के लिए जनाब जो चमचागिरी शुरू कर रखी है, बाकी तो ये फारग हो गए हैं, ना इनसे अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल हो सकी है। सुबह भर में जो हालात हैं दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। एक ही इनके पास तरीका है कि जनाब पीटीआई के लोगों को तंग करो और हुकूमत के लोगों को बताओ जनाब हम आपके खैर खां हैं, हम आपके दुम छल्ला हैं, ये जो काम हम कर सकते हैं ये कोई आने वाला आईजी और आने वाला अफसर नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान की शिकायत थी कि जेल में उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो आज जो एक यानी कि सारी चीज़ें पेश की गई हैं अदालत में, जो तस्वीर दिखाई गई हैं सारा कुछ, उस पर वो कहते हैं कि जी जनाब जो उज़मा बुखारी सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे जनाब ये ससुराल का घर है। तो क्या आप समझते हैं कि जो कुछ दिखाया गया है ये सच ठीक है अंदर सारा कुछ? देखिए जी कि जितने भी सियासतदान पहले गए हैं या आम लोग गए हैं, जेल का एक असूल है, एक कानून है, एक कायदा है और वहाँ पर बी और सी क्लास होती है। तो वो उसको अगर बी और सी क्लास के हवाले से देखा जाए तो वो जेल मैनुअल दैट इज वेरी मच क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का तल्लक है और उसके साथ साथ जितने दूसरे पाकिस्तान के सबका सदूर जहाँ सबका वजीर आजम जो है उनके साथ जेल में जिस तरह का सलूक हुआ है, तो वो उसके बरक्स इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है। इमरान खान तो एक देखे खिलाड़ी है और वो एक न सिर्फ अवाम पाकिस्तान, वो इस्लामी उम्मा का सिपा सालार है। वो इन चीजों से वो ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये जितने मर्जी मजालिम डाले, उसको ना गर्मी लगती है ना उसको सर्दी लगती है। उसको सिर्फ अगर कोई दर्द है तो उसको अवाम का दर्द है, उसको अगर कोई दर्द है तो वो पाकिस्तान का दर्द है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए उसने सब कुछ देखा कि वो अगर जिंदगी गुजारना चाहता। यानी कि आप उनके उस जो असूल की बात कर रहे हैं कि इमरान खान कई दफ़ा तकारीर करते हुए ये कहते थे कि जना जो है उसने कहा था कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ कहा जाए गुड जना गुड, तो आपने अच्छा काम किया। अब इमरान खान यानी कि आपके कहने का मकसद ये चाहते हैं कि जब कल अल्लाह की अदालत में हाज़िर हूँ तो ये कहा जाए गुड इमरान खान गुड, आपने अच्छा किया। बहुत शुक्रिया जनाब गोंदल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, चीज़ों पे डिटेल बात की। गुरु साहब आपने बातें सुनी गोंदल साहब की। गोंदल साहब सीनियर आदमी हैं, बात ठीक करते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये भी पीटीआई के रंग में रंगे हुए हैं, ज़्यादा ये भी साइड लेते हैं। शायद इन्हें भी पता चल गया कि पीटीआई की बात की जाए तो लोग ज़्यादा सुनते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। आपको बात तो वो करनी चाहिए जो सच है और हक की बात हो जनाब। अगर सच और हक की बात बंदा करे ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता चल सके कि क्या सच है और क्या हक है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें सही की हैं। ये वहाँ पे वो किसी, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ये हर आदमी को पता है कि इमरान खान साहब को वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही। लेकिन वो एक मजबूत आदमी है, वो एक बड़ा लीडर है। जैसे इन्होंने फरमाया कि वो आलम इस्लाम का लीडर है, तो उसको पता है वो खेलने वाला है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो हमारी टीम बहुत कमज़ोर टीम थी और ये इमरान खान आखिरी बॉल तक खिलाता था और इतनी गाइडेंस देता, यानी कि बॉलर को, यानी कि अल्लाह ने उसकी किस्मत पे इज्जत जो उसे मिली है या इज्जत से नवाजा है, वो इस अल्लाह के नज़दीक उन लोगों में शामिल है कि जो इज्जत से बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं। वो आखिरी बॉल तक वो खेलता है, हिम्मत नहीं छोड़ता। अच्छा गुरु साहब, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुकदमात की तफसील के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है। तो असद कैसर तो मैंने देखा है कि आजकल आम हालात में मुख्तलिफ, जब किसी पिछले दिनों इन्होंने मेरे ख्याल कोई जमीयत उलमा इस्लाम है, पता नहीं जमीयत तो कोई है ऐसी, मौलाना फजल मान की जमात नहीं, कोई दीगर जमात है जिससे ये मुलाकात भी गया और उन्होंने इनके साथ इत्तफाक किया है कि वो भी इनके हिस्सा रहेंगे, यानी कि वो हर पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वो जमीयत इस्लाम वालों के पास ही जमीयत इस्लाम वालों के पास, बिल्कुल ठीक है आपने। तो वो तो आजकल
आज़ाद फिर रहे हैं, फिर भी कोई खदशा है उनके मुकदमात ऐसे हैं, यानी कि खोले जा सकते हैं, कहने का मकसद ये है। उन्होंने कह रही है मेरी डिटेल दी जाए, क्या क्या ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने बहुत जिसको जब जी चाह पकड़ लेते हैं, जिसको जी चाह पकड़ लिया और जिस पे जितने दिल चाहे उतने मुकदमात बना लिए। हमारे सामने है ना, आपने खुद ही पहले बयान किया है कि आप देखें कि एक बंदा है जैसे परवेज लाई साहब है, उनकी 9 मई के हवाले से हर कोई 4 शहरों में मुकदमात हैं। इसी तरह सनम जवेद, आलिया हमजा, इसी तरह दूसरे लोग हैं, इमरान खान साहब हैं। आपको पता है कि साहब इस पे अदालत नोटिस नहीं ले रही कि कोई खुदा का खौफ करें, इतने मुकदमात और जनाब एक वक्त में। असूलन तो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था कि एक आदमी जो कि आया एक ही वक्त में उस पे हर जगह कितने कितने शहरों में मुकदमात हैं, तो ये देखना चाहिए, इस सारे सिनेरियो को कैच करना चाहिए कि ये इन सियासी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उस सियासी पार्टी के साथ जिसके साथ मोर देन 70% लोग जो हैं अटैच है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस पे कोई कोशिश की नहीं कि भाई उन्होंने कहा कि मुझे ना लिया जाए, नैब FIA एंटी करप्शन की इंक्वायरी हो तो इसकी तफसील फराहम की जाए, ये उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़। अच्छा, दूसरा ये है कि आज जो बयान दिया है उज़मा बुखारी ने एक न्यूज़ चैनल पे कि जनाब जो जेल की तस्वीर साबित की गई, ये हम तो बड़ा इसको फैसिलिटेट कर बड़ी सहूलतें दे रहे हैं और ये तो ऐसे रहा है जैसे ससुराल रहा है, यानी कि इसको तो बिल्कुल। देखिए मरियम नवाज साहबा जो उज़मा बुखारी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मरियम नवाज साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो टीम है बड़ी इमेच्योर टीम है, यानी लूज टॉक मोस्टली लोग कर रहे होते हैं, पेशावराना सियासत। मतलब इनको मतलब सियासत क्या है, सियासत दान क्या होता है? सियासतदान ये नहीं है कि अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट या अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन के लिए वो जो सही या गलत है करता रहे, ऐसा नहीं होता। एक लीडर की निशानी ये है कि और जो अहम पोजीशनों पे लोग होते हैं हुकूमत में, उनकी निशानी ये है कि वो सोच के बोलें, लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसको छोड़ेंगे ऐसा मजीद जो मुल्क की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब करने गए हैं, मैं कहता हूं कि चलो शहबाज शरीफ की सूरत में ही पाकिस्तान में हालात तब्दील होने चाहिए, एक अच्छी बात है। कोई भी हमारा सियासतदान हो, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, किसी भी जमात से हो, आजकल हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ जो उनकी मुलाकात हुई है वो उनके हम मनसब के साथ नहीं हुई, कोई बड़ा लोअर जिसे हम कहते हैं ना कि छोटे ग्रेड का बंदा, यानी कि छोटा कोई सियासतदान, वो उन्होंने जनाब उतो एयरपोर्ट तो लैन आया सी। तो खैर चलो वो मेहरबानी, फिर भी शहबाज शरीफ ने कहा यार तेरी मेहरबानी, चलो मैं वज़ीर-ए-आज़म तो है ना, तू भी मैं और वज़ीर-ए-आज़म मनते रहे हो ना। तो वो जनाब आजकल शहबाज शरीफ साहब जिहड़े ने बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन लुआस वाई से मुलाकात की, जिसमें स्ट्रेटेजिक इत्मीनान और अमली तावन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला किया गया। जनाब उन्होंने कहा कि वो थे जो भी चीज़ां चल रही ने, यकीनन तुहानूं पता है कि साडा वज़ीर-ए-आज़म समेत कोई भी बंदा बाहर जा रहा है तो सब तो पहला साडी ख्वाहिश हुंदी है जनाब तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडे दर ते उत्ते हाज़र होए हैं तो सानूं भी कोई खैर पा दिओ। खैर वास्ते तो हर दर ते जा रहे हैं, चाहे कोई भी, तो चाइना की मेहरबानी हो साडा बड़ा इस साथ भी दे रहा है। तो इस दौरे तो बाद तुसी की देख रहे हो जनाब? जनाब एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक असम्बली में बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि इंडिया और हम पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया सुपर पावर बनने के बारे में सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान खैरात इकट्ठी करने के बारे में सोच रहा है। हाँ जी, ये बात है एक तो। दूसरी बात आपने फरमाया कि वहाँ पे उनके हम मनसब कोई उन्हें लेने नहीं आया। देखें, चाइना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस तरह चाइना भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो इनके हर चीज़ को देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको डायरेक्टली वो कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसकी रोशनी में उनको पता है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं इनका क्या स्टेटस है। ठीक है ना, एक तो ये बात है। दूसरा जो कल की खबर है, नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने ठीक किया, जो भी लेने आए चले गए? मोदी साहब जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, मेरे ख्याल तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया शायद, तो मोदी साहब पता नहीं चाइना में गए थे या किसी मुल्क में गए थे, तो उनका हम मनसब जब उन्हें नहीं लेने गया था तो उन्होंने जहाज़ से उतरने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा बाप मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि वो मोदी साहब जो थे वो इलेक्टेड
मेंबर थे वहां, उसकी पार्टी जीती हुई थी, ताकत की अहमियत थी। इंडिया में उनकी पार्टी जीती हुई थी, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप देखें कि इस मुल्क में डिसीजन कौन करता है, और ये इतने में बड़े खुश होते हैं कि वो हमें आने दिया। लेकिन ये देखें ना कि ये तो वाकई पाकिस्तान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दुनिया में, दुनिया की जोग्राफियाई जो हदें हैं उनके अंदर जो पाकिस्तान का निशान बनता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अमेरिका भी इधर देख रहा है, रशिया भी इधर दे रहा है, चाइना भी इधर देख रहा है, ईरान भी इधर देख रहा है, अफगानिस्तान की भी नज़र है, इंडिया की भी नज़र है। तो इनको चाहिए था कि अपना पहले अपने आप को देखें। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने मुल्क को सियासी तौर पे मुस्तहकम करें। जब तक आप मुल्क को सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं करते तो किसी जगह पे आपकी इज़्ज़त मिलना मुश्किल होती है। लेकिन हमें तो अफसोस हुआ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, जो जैसा भी है वो उधर गया है, तो उसको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था। यानी कि आपकी बात ठीक है कि उसे प्रोटोकॉल जो है मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अच्छा, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले भी चाइना तो चलो है ही वो, इस वक्त जब सऊदी अरब के दौरे पे थे वहाँ हमें काफ़ी 10 अरब की डॉलर की जो है वो इमदाद की सूरत में पाकिस्तान में एक सरमायाकारी हो रही है, तो यहाँ से भी हमें बड़ी तवक्कुआत हैं। तो मेरे ख्याल में ये दौरा अच्छा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को यहाँ पे पाकिस्तानी दौरे बड़े कम खर्च बाला नशीन, यानी कि खर्च नहीं ज़्यादा होना चाहिए आवाम की, हमें जो मौजूदा सूरत हाल है उसका दर्द का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब फरमाया, इससे में हमारे 120 पाकिस्तानी कंपनियों ने हिस्सा लिया जनाब, ठीक है ना जी। सही। और पाकिस्तानी चीनी कंपनियों में 32 मुफाहमती समझौते हुए, जी जी, ठीक है ना जी। और बेशुमार कंपनियों के MOU साइन हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल है जी, और अदविया साजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ज़राअत और देगर शोबों के ऊपर इन्होंने बातचीत की। अल्लाह करे जो बातें आपने बताई हैं इस पे काम हो जाए तो हमारा तो अब आप देखें कि यही वो शोबे हैं, जब सऊदी अरब के साथ हमारा चल रहा था तो वहाँ भी यही शोबों पे बात हो रही थी कि इन्हीं शोबों में जो है सरमायाकारी होगी। और इसी तरह और एक कंट्री के साथ भी जब था, ईरान के साथ भी, जब ईरान के प्रेसिडेंट साहब आए थे तो उस वक्त भी। लेकिन ये देखें, जब तक आप इस्तेहकाम नहीं पैदा करेंगे मुल्क में, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और मुझे नहीं लगता कि इसके कोई मुस्बत असरात पाकिस्तान की जो इकानमी है उस पर पड़ सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चलो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिश रंग लेके आए। तो लेकिन कोशिश करने से बेहतर पहली चीज़ क्या है, पाकिस्तान में जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं ना होगा, जब तक अदारों की सरबुलंदी के लिए कोई सिस्टम वज़ा नहीं ना कर दिया जाता, जब तक करप्शन के खात्मे के लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ नहीं की जाती, जब तक करप्ट लोगों से छुटकारे के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, तो उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखिए, इसके लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो फिर हम वहीं आ जाते हैं कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। सही। और जो लोग जीतते हैं वो इक़्तिदार संभालें, और जब वो लोग इक़्तिदार संभालेंगे, देखें वो लोगों में से आए हुए हैं, उनको लोगों के दर्द का पता है और तकालीफ का पता है, उन्होंने उसकी रोशनी में अपनी मनसूबाबंदी करनी है, प्लानिंग करनी है। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम के बारे में तो आप सोचे ही ना। ये तो आप अब देखें, ये इतने मुल्कों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है अपने मुल्क के हालात ठीक करें। ये जो आप कभी आलिया हमजा को पकड़ लेते हैं, कभी सनम जावेद को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कहीं 200 केस हो रहे हैं, कहीं 150 केस हो रहे हैं, इन सब को बैठ के सेटल करें, इनको हल करें। और जो लोग अब देखें, सारे केस आ जाने हैं कोर्टों में। अब इस्लामाबाद के 3 हल्कों के केसेस लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। सही। और पूरी दुनिया आपको देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और उनकी कोर्ट्स में
कि कौन कौन से केस चल रहे हैं, और अगर ये केसेस जो 180 सीटों के केसेस हैं जी, उसमें से 94 इन्होंने जीती है, तो वो तो फौरन हुकूमत चेंज हो जाएगी। अच्छा गुरैज साहब, हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से वादा किया था कि हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी हमने बात की थी कि वहाँ मंदी का रुझान रहा था। मेरे पास जो चीज़ें हैं ये मैं बताता चलूँ कि नए वफाकी बजट के पेश नज़र वहाँ जो चीज़ों पर छूट दी जा रही है, मसलन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म होने, बॉन्ड और स्टॉक्स पर इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स को ज़ाती पोर्टल आमदनी के मुसावी करने की ज़ेर इतलात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमेरात को यानी कि आज मुसलसल चौथे दिन भी उतार चढ़ाव के पेश नज़र मंदी के बादल छाए रहे। हमारी स्टॉक एक्सचेंज से आम आदमी का, गरीब आदमी का कोई ना तो बिल्कुल किसी किस्म का वास्ता है इसमें मंदी हो, इसमें जनाब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा कारोबार हो। हमारी आवाम ये सारे हेर फेर है, आवाम बखूबी समझते हैं, लेकिन खैर ख़बर थी, हम आपको बता दी हमने। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।